Now here we solve the examples on derivatives. Now here we know that d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Now here we see the different examples on this same formula. Derivative of simple x. Now instead of n, what is here? 1. So 1 into x raised to 1 minus 1, 1 into x raised to 0, 1 into 1, that is 0. That is d by dx of x is 1, d by dy of y is 1, d by dz of z is 1. That means when same variable is there, that time you will get the derivative is always 1. That is d by dx of x is 1, d by dy of y is 1, d by dz of z is 1. Okay, remember this. Now second one, d by dx of x square, that is 2 into x raised to 2 minus 1. 2 into x raised to 1, that is 2x. Then derivative of x raised to 5. 5 into x raised to 5 minus 1, that is 5x raised to 4. d by dx of x raised to 50. So 50 into x raised to 50 minus 1, that is 50 into x raised to 49. Then d by dx of x raised to 1000. 1000 into x raised to 1000 minus 1, 1000 into x raised to 91. So these are the examples which is depend on these formulas when we take n is a positive integer. Now we take again another one, x raised to minus 5, 5 into x raised to minus 5 minus 1, minus 5x raised to minus 6. So these are the different types. जैसे कि 1 upon x है. What we do here? d by dx of x raised to minus 1. Minus 1 into x raised to minus 1 minus 1. Minus 1 into x raised to minus 2. That is minus 1 into 1 upon x square or minus 1 upon x square. That means you remember this formula. Derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Then derivative of 1 upon root x. Same thing. Here we know that what is root x? Root x, that is root x का मतलब होता है x raised to half. That is d by dx of, अब उसको numerator में लेके आओ. That is minus half into x raised to minus half minus 1. Minus half into x raised to minus 1 minus 2 upon 2. Minus half x raised to minus 3 by 2. That means what we get here then, it is minus half into 1 upon x raised to 3 by 2. यानी root x है. So in that case x raised to half minus half minus 1, that is minus half x raised to minus 1 minus 2 upon 2, that is minus half x raised to minus 3 by 2, or you take in denominator. So minus 1 upon 2 into x raised to 3 by 2. Now take next one, that is derivative of root x. So d by dx of x raised to half. Half into x raised to half minus 1. Half into x raised to 1 minus 2 upon 2. That is half into x raised to minus half, or half into 1 upon x raised to half, or 1 upon 2 root x. So you always remember derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. Derivative of root x is 1 upon 2 root x. तो हमेशा ध्यान में रखो 1 upon x का डेरिवेटिव और रूट x का डेरिवेटिव ये आते ही है. Derivative of third root of x. How you find out this derivative? Third root of x का मतलब x raised to 1 by 3. Now use the x raised to n formula. 1 by 3 into 1 by 3 raised to minus 1. 1 by 3 x raised to 1 minus 3 upon 3. So 1 by 3 into x raised to minus 2 by 3, or the same thing we write down in denominator 1 upon 3 into x raised to 2 by 3.
So in such a way, such type of different examples we have to solve by using the formula of x raised to n. Now we take another formula. Only few formulas are derivatives. We have to solve different types of example on that formula. इन जनरल साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते, जैसे कि एक्स रेस टू एन के ऊपर ए रेस टू एक्स, तो ये टाइप के या इसके ऊपर अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. तो यहाँ पे बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है. वैसे ही सेम टाइप का दिखने वाला फॉर्मूला एक्स रेस टू एन जो अभी हमने सॉल्व किए, इसमें वेरिएबल जो है वो बेस में है और कांस्टेंट जो है वो पावर में है. यहाँ पे कांस्टेंट है और इधर ये कांस्टेंट है, तो यही डिफरेंस है दोनों फॉर्मूलेस में. तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट रहेंगे. जैसे कि इसके प्रॉब्लम, सपोज ए की जगह मैंने 5 है, 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5, डेरिवेटिव ऑफ 7 रेस टू एक्स, तो ये आएगा 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7. अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं 2a रेस टू एक्स है, तो a की जगह मैंने 2a रखे, फर्क कुछ भी पड़ने वाला नहीं है. 2a रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2a, बस. क्योंकि बेस अगर आप कुछ भी रखते हैं, a की जगह 2a रखो, 3a रखो, कुछ भी रखो, तो वो तो बेस जो है वो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा. तो यू ऑलवेज अप्लाई दिस फॉर्मूला. Then we write down the rules of derivative. देखो सबसे पहले रूल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स. तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो ऑफ डेरिवेटिव्स को अलग अलग कर सकते हैं. इन केस अगर कोई कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को बाहर लेके फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं. उसके बाद भी और भी रूल्स है, जैसे कि प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, तो उसको हम बाद में देखते हैं. सबसे पहले हम फॉर्मूलेस के ऊपर से कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नंबर 1, y is equal to x cube plus 3x plus 5. सपोज एग्जाम्पल लिया है मैंने. देखिए, when the given problem is in the form of y is equal to fx. ये जो है fx का मतलब होता है an expression which contain only x. Okay. The meaning of this is fx. That is y is a function of x. f of y, that means that expression contain only y. F of z, that means that expression contain only z. F of xy, that means that expression contain x and y both. So in this case y is equal to x cube plus 3x plus 5. तो देखिए अभी डिफरेंशिएशन से पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसको शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी w की जगह, w का मतलब विथ, r का मतलब रिस्पेक्ट, 2 का मतलब p. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो अभी डिफरेंशिएशन करते समय अभी हमको पता है रूल कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में अभी देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का मतलब वही होता है. डी बाई डी एक्स इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर विच इज अप्लाई ऑन वाई. Okay, so d by dx of y, so here d by dx of x cube plus 3x plus 5. तो आप अलग अलग करो, x cube d by dx of 3x और यहाँ पे d by dx of 5. देखो x क्यूब का x रेस टू n की जगह फॉर्मूला. अब देखो यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट है, सो 3 टेकिंग आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ x. लेकिन यहाँ पे अकेला कांस्टेंट है, तो अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0. यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल के साथ है. ओके, सो 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस 0. सो फाइनली वी गेट 3x स्क्वायर प्लस
3. So in such a way we find out the derivative of this function. Take another one. Y is equal to a raised to x, x raised to a raised to a. तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमको कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है. व्हेन यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप ऐसे टर्म्स देखो कि जिसमें एक्स प्रेजेंट है, जैसे कि a रेज टू एक्स, x रेज टू a. दिस टू टर्म्स कंटेन x, बट a रेज टू a दिस टर्म नॉट कंटेन x, सो देयरफॉर दिस इज अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है. व्हेन यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट टर्म मस्ट कंटेन x, अदरवाइज वी ट्रीट एज अ कांस्टेंट. देखिए, डिफरेंशिएट with respect to x, तो d by dx of y, d by dx of a raised to x, d by dx of x raised to a, d by dx of a raised to a. तो ये तो dy अपॉन dx. अब a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x इंटू लॉग, ये x raised to n का जैसा है, a इंटू x raised to a माइनस वन, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. So a raised to x into log a into x raised to a minus 1. So ये भी प्रॉब्लम बहुत बार आता है एग्जाम में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. अनदर एग्जाम्पल, log x to the base प्लस log x to the base 5. तो देखिए, जब आपका बेस e रहता है तो उसको आपको लेने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू राइट डाउन विदाउट e. log x टू द बेस e रहता है, e इज अ नेचुरल बेस, तो व्हेन यू डिफरेंशिएट उसको आपको रखने की जरूरत नहीं है. उसके बाद लेकिन जब आपको e के अलावा कोई दूसरा बेस दिखता है तो चेंज ऑफ बेस का रूल यूज करना है. ये फॉर्मूला यूज करके आपको जो बेस है वो आपको नीचे रखना है. सो log x टू द बेस 5 को आपको लिखना है log x अपॉन log 5, अदरवाइज डेरिवेटिव्स नहीं होगा. तो देखो, dy अपॉन dx, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. अब देखिए, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में कांस्टेंट बाहर लिया था, वैसे ही अब देखिए इसको मैं और एक स्टेप लिखता हूं एडिशनल. 1 अपॉन log 5 इंटू log x लिख सकते हैं. अब ये जो पार्ट है इसमें x नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू से दैट दिस टर्म इज अ कांस्टेंट. एंड व्हेन यू डिफरेंशिएट, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको कांस्टेंट को हमेशा बाहर लेना है. सो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन log 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x. टेकिंग 1 अपॉन x कॉमन, सो वी गेट दिस आंसर. सो इन सच अ वे, अगर बेस अदर देन e है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना जरूरी है, और अगर बेस दिया है तो डिफरेंशिएट करते समय बेस लिखने की जरूरत नहीं है. Now we see the product rule of derivatives. So very easy, and you have to buy out this result. d by dx of uv का मतलब these are the two different functions, different types of function. One exponential, another is trigonometry. One algebraic, another is inverse trigonometric. तो कोई भी पेयर डिफरेंट टाइप का रहता है. तो प्रोडक्ट रूल इस तरह से लिखते हैं, u into derivative of v plus v into derivative of u. अगर आपको u v के फॉर्म में नहीं समझ में आता है तो आप एक फंक्शन को फर्स्ट लिखो, दूसरे फंक्शन को सेकंड लिखो. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ओके, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको u को v का ही पहले लेना है, ऐसा नहीं, आप u का भी पहले डेरिवेटिव ले सकते हैं. बट इन जनरल लाइक दिस वे हैव टू फॉलो दिस रूल, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और first into derivative of second plus second into derivative of first. Now let's we see the example. d by dx, x into e raised to x. आप इसको u कंसिडर करो, इसको v कंसिडर करो. So x into derivative of e raised to x plus e raised to x into derivative of x. तो e raised to x का डेरिवेटिव आपको पता है, e raised to x, and derivative of x with respect to x is 1. Taking e raised to x common, so here we get the final answer is e raised to x into x. Another example, d by dx of x into tan inverse x. करो, this is first, this is second. Apply करो product rule.
x into derivative of tan inverse x plus tan inverse x into derivative of x. tan inverse x का 1/1 plus x square and derivative of x with respect to x is 1. So x upon 1 plus x square plus tan inverse. ठीक है, बहुत इजी है. आपके पास फॉर्मूले का लिस्ट रहेगा तो आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं. टेक अनदर वन, cot x into cosec x. First cot x into derivative of cosec x plus cosec x into derivative of cot x. तो देखिए cot x into derivative of cosec x is cosec x minus cosec x into cot x plus cosec x derivative of cot x is minus cosec square x. तो minus cot x into cosec x. तो cot x into cot x आप डायरेक्ट minus cot square x and minus cosec cube x. So in such a way we have to apply the product rule. Take another one, d by dx of x square into sin inverse x. करो अप्लाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो. x square into derivative of sin inverse x plus sin inverse x into derivative of x square. तो sin inverse x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस sin inverse x स्क्वायर का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 का फॉर्मूला अप्लाई करो. एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स इंटू 2x. So in such a way we have to apply the product rule. देखो कभी कभी प्रोडक्ट रूल में 3 फंक्शन भी आते हैं. कभी ऐसा ये 2 फंक्शन का है. समटाइम्स दे आस्क फॉर 3 फंक्शंस. तो इसमें बहुत इजी है, एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेके जाने का और बीच में प्लस साइन पुट करते जाने का. जैसे कि u इंटू वी, तो सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव लिया है w, उसके बाद u इंटू डब्ल्यू, देन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ v प्लस कौन बचा है v इंटू डब्ल्यू एंड लास्टली वी टेक डेरिवेटिव ऑफ u. यानी हमने पहले w का डेरिवेटिव लिया, बीच में प्लस साइन, फिर v का डेरिवेटिव लिया, बीच में प्लस साइन, और लास्ट में u का डेरिवेटिव लिया. तो 3 से भी ज्यादा फंक्शन आप यूज कर सकते हैं. यू हैव टू यूज दिस चेन रूल ऑफ दिस प्रोडक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल, x इंटू tan इनवर्स x इंटू e रेज़ टू x. तो u का मतलब x, v का मतलब tan इनवर्स x और w का मतलब e रेज़ टू x. अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. अब एक एक का डेरिवेटिव लेके बीच में प्लस साइन पुट करते जाओ. x इंटू tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x प्लस x इंटू e रेज़ टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x प्लस अभी बचा कौन है x, tan इनवर्स x e रेज़ टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x. करो अप्लाई फॉर्मूला. x इंटू tan इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x इज e रेज़ टू x. x इंटू e रेज़ टू x डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इंटू e रेज़ टू x डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1. So in such a way we have to find out the derivative of this multiple function, that is x into tan inverse x into e raised to x. Now we see here it's a very important rule now, and that name of this rule is division rule or quotient rule. देखिए डिवीजन रूल और क्वोशिएंट रूल क्या है, ये भी आपको डायरेक्ट बाय हार्ट करना है. तो इसमें 2 फंक्शन दिए रहेंगे, एक u इज इन न्यूमरेटर, v इज इन डिनोमिनेटर. तो देखो u बाई v,
तो रूल क्या है डेरिवेटिव का? सो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूले जो है वो आपको डायरेक्ट बाहर करना है, तो बाहर करते समय भी आपको ठीक तरह से बाहर करना है। पहले v ही आना चाहिए। अगर आपने u पहले लिखा और v का डेरिवेटिव लिया तो फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए ठीक तरह से देखो, यही फॉर्मूला में थोड़ा अलग टाइप से लिख के देता हूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मैं लिख के देता हूं, तो आपको जल्दी आइडिया आएगा। तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इस तरह से डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इस तरह से ये डिवीजन का फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए मैं अप्लाई करके बताता हूं। एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स। देखिए अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन है, तो देखो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो देखो ई रेज टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर। देखिए क्या कॉमन आता है यहाँ पे, ई रेज टू एक्स कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स और ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर। तो एक ई रेज टू एक्स कैंसिल करो तो फाइनली वी गेट 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन रूल। नाउ वी सी द डिफरेंट एग्जांपल्स। फाइंड dy by dx if y is equal to x upon sin x। देखो अभी अप्लाई करते हैं। गिवन दैट y is equal to x upon sin x, differentiate with respect to x, dy by dx sin x into derivative of x। देखो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। देखिए अभी साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर। सो फाइनली वी गेट साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर। तो देखिए अभी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है। टेक अनदर एग्जांपल। गिवन दैट y is equal to x minus 1 upon x plus 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो अभी फॉर्मूला अप्लाई करो, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो देखिए अभी x प्लस 1, अब बीच में माइनस साइन है तो आप डेरिवेटिव को अलग अलग करो, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 1। हियर अगेन यू सेपरेट आउट द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑफ 1, ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ब्रैकेट भी इधर उधर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो व्हाट वी गेट हियर देन, x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 minus x minus 1, derivative of x is again 1 and derivative of constant is 0 upon x plus 1 whole square. So x plus 1 into 1, x minus 1 into 1 upon x plus 1 whole square. So finally we get x plus 1 minus x minus 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओपन करो ब्रैकेट को और कैंसिल होता है x x, सो फाइनली वी गेट 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो रीड इट केयरफुली।
Take another one, e raised to x upon e raised to x plus 1. देखो, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. तो अप्लाई फॉर्मूला e raised to x plus 1 derivative of e raised to x is e raised to x. Derivative of e raised to x is e raised to x. Derivative of 1 is 0 upon e raised to x plus 1 whole square. करो कैलकुलेशंस करो भी. e raised to x ब्रैकेट में e raised to x plus 1 e raised to x into e raised to x. अब मैंने उसका कैलकुलेशन मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पता है एक e रेज टू x को हम कॉमन ले सकते हैं अपॉन e रेज टू x प्लस 1 होल स्क्वायर. तो e रेज टू x इज गेटिंग कैंसल, सो फाइनली वी गेट e रेज टू x इंटू 1 दैट इज e रेज टू x अपॉन e रेज टू x प्लस 1 होल स्क्वायर. सो सी दिस एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किए हैं. Take another example, cos x upon 1 plus sin x. देखिए अभी करो अप्लाई फॉर्मूला 1 plus sin x into derivative of cos x minus cos x into derivative of 1 plus sin x upon 1 plus sin x whole square. फॉर्मूला आप ठीक तरह से अप्लाई करो तो आपको आंसर बराबर आएगा. फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते समय रॉन्ग अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो देखिए अभी 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x माइनस cos x. देखिए अभी 1 कांस्टेंट है तो 0 और साइन का डेरिवेटिव आता है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर. देखो अभी ये बीच में मल्टीपल साइन है तो 1 इंटू माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ऑफ माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स. यहाँ पे देखो यहाँ पे भी अभी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर. और भी उसको सॉल्व कर सकते हैं. माइनस कॉमन ले लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर. देखिए यहाँ पे कोई आइडेंटिटी है आपको याद आ रहा है. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 यानी माइनस साइन एक्स माइनस 1. ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री का अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर. देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए तो यह आएगा साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर. तो इसमें से एक 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल करो तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. तो इन सच ए वे वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स.